Hello everyone, namaste and welcome to this wonderful class of crochet hair accessories. स्वागत है सभी का इस crochet hair accessory class में. Thank you so much for showing your trust and enrolling for this class. I hope आप सभी all set हैं कुछ नया सीखने के लिए. Just to share with you, हमारी आज की ट्रेनर, हमारी कोच जिनका नाम है चेतना शर्मा. We have already been associated with Chetna from long time और हम बहुत सारे सेशंस पहले कर चुके हैं. आज के सेशन में हम हेयर एक्सेसरीज पे स्पेसिफिकली काम करेंगे. We are going to work specifically on hair accessories today. So क्योंकि ये एक सेकेंड लेवल एडवांस लेवल क्लास है तो हम बहुत ज्यादा फोकस बेसिक्स पे शायद ना करें. Though we intend to be very clear and upfront in teaching you things so that you can make best of the class. However, please understand this is not a basic class. ये एक basic class नहीं है. तो अगर by chance कोई ऐसी चीज है जहां आपको डाउट लगता है, we would request you to please drop us a comment. आप हमें comment करके बता सकते हैं ताकि हम आपकी मदद कर सकें. In order to make this session constructive, let's just focus on the session. आपकी जो भी queries हो, please post them in the comments so that we can get back to you and answer. While we are teaching, we may take little time to reply you क्योंकि during the session जब हम बना रहे होंगे तो कई बार possible है कि आपकी query immediately answer ना कर पाए. Please be assured, post the session, we will answer all the queries और कोई भी query unattended नहीं जाएगी. Right? नमस्ते एक बार फिर से. मेरा नाम दिलप्रीत कौर विर्क है और मैं ओनर हूँ ब्रांड काउ कैंडल्स एंड डिजाइनर कैंडल बिजनेस क्लब की, जहां हम स्किल डेवलपमेंट पे काम करते हैं और बहुत सारे कैंडल रिलेटेड और डिफरेंट आर्ट्स रिलेटेड कोर्सेज को हम इनकलकेट कर रहे हैं. ऑलरेडी बहुत सारे कोर्सेज हम इंक्लूड कर चुके हैं. सो इफ यू हैवंट टेकन अ मोमेंट to go through it, we will share all the details with you where you can find the other courses. Let's just begin with today's session. आज का सेशन शुरू करते हैं and I would like to welcome our trainer Chetna. Chetna, welcome on board. Please, we would love you to give your introduction and let's just start with the Power Pack session. This session is being recorded, guys. इस session को हम record कर रहे हैं and we will be using this for our future use. So this is for your information. And nowhere we intend to misuse any of the information recorded here, but since this is our personal property, we will be using it and this becomes my obligation to inform you in advance. So Chetna, over to you. Thank you, ma'am. Good morning, everybody. My name is Chetna and I'm doing this art since my childhood, and I just love to do it and I love to teach also. So I welcome you all and I hope you know the basic steps. And in case अगर आपको कोई बेसिक स्टेप नहीं आता होगा या कहीं भी, तो वी आर कंडक्टिंग आवर बिगनर कोर्स आल्सो. उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं और उसमें भी आप इनको बेसिक चीजों को सीख सकते हैं. बट स्टिल, टू स्टार्ट विद आई विल टीच यू फ्यू बेसिक फंडामेंटल स्टिचेस जो हम नॉर्मली किसी भी प्रोजेक्ट में यूज करते हैं. So as you all must be aware of slip stitch. मैं आपको स्टार्ट कर रही हूँ स्लिप स्टिच के साथ. ऐसे yarn over and just pull the tail from here. So this becomes your slip knot. Then second is, I hope it is clear. और अगर नहीं clear आपको मेरा, तो आप please बोलना क्योंकि I'm doing it with the thread. और थोड़ा बड़ा ही कर रही हूँ, लूज कर रही हूँ ताकि आप देख सके. दिस इज अ चेन स्टिच, वेरी सिंपल. यार्न ओवर करना है और इसमें से थ्रेड लूप में से पुल कर देना हुक से. ये हो गया. Chetna, thank you so much for actually revising this a little bit. Once we are done with this, I would just request if you can take all the members through
all the materials we will be needing for today's session, और एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि किस किस तरीके के थ्रेड्स हम क्रोशिया में यूज कर सकते हैं, सो दैट अगर कोई न्यू है तो उनको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो सके. यस मैम. सी ये हैं, विल बी यूजिंग दिस. ये बॉल्स की फॉर्म में आते हैं. ये हैं एंकर थ्रेड्स. आपको आई थिंक, आई होप इट्स विजिबल, क्लियर. ये है 4 प्लाई यार्न जो हम यूज करेंगे फॉर स्पेशली फॉर हेयर एक्सेसरीज. ये और वूल भी ऑल्सो यू कैन यूज, बट दिस इज अ क्रेप कॉटन वूल. तो इट इज लिटिल, इट्स नॉट वेरी थिक, इसलिए हम इसको इनके लिए यूज करेंगे. देन वी नीड वन क्रोशिया of different sizes and numbers depending upon the size of your thread. जैसे इसमें 4 ply का हमारा thread है, तो हम इसमें जो क्रोशिया यूज कर रहे हैं that is of 7 number. And the best thing is, आप जब सप्लायर से लेते हैं तो आप उनको भी पूछ सकते हैं, या अगर शॉप से लेते हैं तो आप वहां पे जाके जस्ट चेक विद द हुक साइज एंड योर थ्रेड पे एक चेन बना के, तो उससे आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि आपको ये फिनिशिंग कैसी आ रही है. Then we need few rubber bands like this, जिसका link we have already shared on the in your group also. मैम ने ऑलरेडी आपको शेयर किया है. ये Amazon पे easily available है. These are the easy rubber bands. ये हम पोनी होल्डर्स के लिए और हेयर बैंड्स के लिए यूज करेंगे. ये हम कुछ क्लिप्स हैं, जैसे ये टिकटॉक क्लिप्स हैं. कुछ ब्लैक में मैंने लाए हैं, कुछ वाइट में लिए हैं. ये इजीली अमेजोन पे अवेलेबल हैं. और एक इस टाइप का क्लिप भी हमने यूज किया है, ये हम यूज करेंगे. इसको मैंने यूज किया है जो कल हम क्लास लेंगे वो हेयर बैंड बनाने के लिए. ये हम कल सीखेंगे, और इसके लिए मैंने स्पेशली यही क्लिप को यूज किया है. थोड़ा साइज बड़ा है, अगर इसमें कोई छोटा हमें मिल सकता है तो वी कैन यूज फॉर किड्स ऑल्सो, और बैक पिन के लिए भी हम इसको यूज कर सकते हैं. देन वी नीड फ्यू बीड्स ऑफ डिफरेंट साइजेस एंड क्लैरेट ऑफ ट्रीटमेंट. ये हैं कुछ गोल्डन बीड्स हैं, कुछ वाइट बीड्स है. आपकी अपनी चॉइस है, आप कौन सा बीड यूज करना चाहते हैं. लाइक आई स्पेशली यूज वाइट एंड ब्लैक, गोल्डन, एंड साइजेस आल्सो वेरीज. ये कुछ बड़े साइजेस के हैं, ब्लैक एंड वाइट, और ये वाले कुछ डिफरेंट साइजेस के हैं. तो डिपेंडिंग अपॉन योर ओन विश, ऑन क्रिएटिविटी, आप अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से इसको यूज कर सकते हैं. And then we'll be needing one a stitch marker also for making butterflies, क्योंकि उसमें एक राउंड से ज्यादा होता है, तो उसके लिए हमें इस तरह के स्टिच होल्डर्स चाहिए होते हैं. Stitch markers. These are the stitch markers. It is also easily available. We have shared the link also. Then measuring tape. This also we need. अब एक चीज और है. अब जैसे ये मैंने बैंड बनाया है, हेयर बैंड, आई विल बी टीचिंग यू दिस ऑल्सो. इसको अगर आपने टाई करना है पीछे से, either you can use chain, then you don't need satin ribbons. Otherwise आप यहाँ पे satin ribbons टाई करके आप इसको पीछे से बांध भी सकते हैं. तो it is purely your choice कि आप इसमें चेन लगाना चाहते हैं या फिर satin ribbons. If you want, then we can share the link of that ribbons also. And glue gun. Glue gun is also, it's like this. और ये ना बहुत, अगर आप आपके पास नहीं है तो as you do all this and you people are also creative,
तो आपके पास ये होना बहुत जरूरी है, बिकॉज यहाँ से फिक्सिंग इसकी बहुत अच्छी होती है. अदरवाइज फेविकॉल ऑल्सो यू कैन यूज टू set the beads and all, but I'll prefer this. If you want, I can share the link of this glue gun also. And then scissors. बस that's all is required. In between अगर मुझे लगा कुछ और मेरा से मिस आउट हो गया है तो while class only I'll share. So I hope it's clear कि हमें ये मटेरियल चाहिए. अब to start with the accessory basic stitches, I taught you that slip knot, then chain, then double crochet, double stitch में yarn over करना है, and then insert in the chain. ये आपके पास 3 stitches हैं, yarn over first 2 का 1 और इन 2 का फिर से 1. So this is your double stitch. इसका भी we have shared it in PDF और notes जो आपको मैम शेयर करेंगे. You all will get notes for the basic stitches also, but still अगर आप किसी को कोई भी problem है तो they can join our basic course or they can ask the question in between also अगर clear नहीं होता तो. क्योंकि ये stitches हम use करेंगे अपने इस project में. So this is double crochet, double crochet. Now अब मैं आपको बताती हूँ half double crochet. Same yarn over, we'll pull the one more thread from the loop. ये 3 है. पहले हमने क्या किया था 3 का 2 फिर 2 का 1. इसमें हम सीधा 3 का 1 कर देंगे. So this is your half double crochet. Now we'll do triple crochet. Triple yarn over 2 बार करना है हमें. उसके बाद फिर से लूप में से हम थ्रेड निकालेंगे. पहले इस डबल में क्या था हमारे पास 3 स्टिच थे. इसमें हमारे पास 1 2 3 एंड 4. 4 का हमने ये yarn ओवर करेंगे और 2 करेंगे इसका फर्स्ट 2 का. देन 3 रह जाएंगे. 3 का फिर से हम 2 करेंगे और 2 का हम 1 करेंगे. सो दिस इज योर ट्रिपल क्रोशिया. ये आप बैग्स वगैरह में यूज कर सकते हैं. फ्लावर मेकिंग में ये स्टिच बहुत किया जाता है. प्लस जहाँ पे हमें लेंथ को थोड़ा जल्दी इंक्रीज करना है तो कोस्टर्स में भी हम यूज कर सकते हैं. ये है ट्रिपल. उसके बाद सिंगल स्टिच. सिंगल स्टिच हमें पहले करना था बट एनीवे सिंगल स्टिच में यार्न ओवर नहीं करेंगे. हम सीधा इंसर्ट करेंगे हुक को, थ्रेड को पुल करेंगे और हमारे पास 2 लूप्स होंगे और 1. सो दिस इज आवर सिंगल क्रोशिया. ऑलमोस्ट हमारे ये सारे स्टिचेस हम यूज करेंगे इस टाइम पे बनाने के लिए. एंड होप यू आर क्लियर विद दैट मैजिक रिंग ऑल्सो, क्योंकि कई जगह हम मैजिक रिंग को भी यूज करेंगे. आई टीच यू मैजिक रिंग. ये स्टिचेस हैं. मैजिक रिंग में आप इसको फोल्ड करेंगे ऐसे अपने फिंगर्स पे. इसको यहाँ हुक को यहाँ से निकालेंगे और
स्लिप नॉट करेंगे यहाँ पे। इसमें डिफरेंस क्या है कि हम स्लिप नॉट का मैजिक रिंग का यूज क्यों करते हैं, ताकि जो हम फ्लावर बनाते हैं, आई शो यू, फ्लावर बनाते हैं तो उसके अंदर का जो स्पेस है बीच का सर्कल का, अब जब हम इसके अंदर काम करते हैं इस रिंग के अंदर, जैसे हमने सपोज 4 बनाए हैं, 4 डबल क्रोशियास बनाए हैं, हम थ्रेड को पुल करेंगे तो इनके बीच में कोई स्पेस नहीं रहेगी। ये देखो, इट विल बी लाइक दिस। जब ये मतलब ये सर्कल जब फॉर्म होगा इसके अंदर स्पेस नहीं होगी। और अगर हम स्लिप नॉट और चेन के थ्रू सर्कल बनाएंगे तो वो ये होगा, मतलब आई होप यू कैन सी द स्पेस इन बिटवीन, ये स्पेस। अगर आपको बीच में सेंटर स्पेस नहीं चाहिए तो आप ये स्लिप नॉट यूज, ये सॉरी मैजिक रिंग को यूज कर सकते हैं। अदरवाइज चेन बना के, स्लिप नॉट बना के, छोटा सर्कल बनाकर भी आप काम कर सकते हैं। और अगर आपसे वो कंफर्टेबली नहीं हो रहा तो आप अपना बीड यहाँ पे अटैच कर सकते हैं, बाद में इस स्पेस को फिल कर सकते हैं विद द बीड। सो दिस इज द डिफरेंस। अब हम आज के प्रोजेक्ट्स के साथ थोड़ा सा मैं बताती हूँ कि आज हम क्या क्या कवर करेंगे। दिस इज वन रबर हेयर बैंड, एक ये हेयर बैंड है, एक ये ट्यूलिप फ्लावर्स के साथ हम 3 थ्रेड्स को यूज करके बनाएंगे। एक ये भी हम कवर करेंगे, एक्स ट्विस्ट कर कर हेयर बैंड बनाएंगे। और एक ये वाला हेयर बैंड हम कवर करेंगे रिंग्स के साथ। सो विल बी कवरिंग दीज 5 हेयर बैंड्स एंड डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर्स विल लर्न, जिसको हम अगर टाइम होगा तो आज ही क्लिप्स का कर लेंगे, नहीं तो उसको फिर पेस्टिंग एंड फिनिशिंग हम कल करेंगे। जैसे विल बी मेकिंग द बटरफ्लाई, आई बी टीचिंग यू दिस बटरफ्लाई, जिसको आप क्लिप के साथ अटैच कर सकते हैं। रोज, रोज फ्लावर, इसको आप इस हेयर बैंड पे भी लगा सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं, और इसको आप क्लिप के ऊपर भी लगा सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। साइड पे रहेगा ये फ्लावर, और नहीं तो आप क्लिप पे भी लगा सकते हैं। ये बीड्स के साथ है फ्लावर्स, जिसको आप यूज कर सकते हैं क्लिप्स के ऊपर। दिस इज अ स्मॉल हार्ट इन ये फ्लावर है। दिस इज अ स्मॉल बो क्लिप्स के ऊपर लगाने के लिए। देन दिस इज अ 3D फ्लावर, जिसको आप रबर बैंड के ऊपर फिक्स कर सकते हैं, क्लिप्स के ऊपर लगा सकते हैं। दिस इज अ डेजी फ्लावर पैटर्न। ये पफ फ्लावर है, ये स्मॉल सर्कल्स हैं जो हम यूज करेंगे। ये क्लिप के लिए छोटा सा हम बनाएंगे, जिसको हम फिर पेस्ट कर सकते हैं ऑन द क्लिप, और इसके ऊपर थोड़ी सी एम्ब्रॉयडरी करके हम फ्लावर्स को बना सकते हैं। एंड व्हाट एल्स, और हम ऐसे हेयर क्लिप्स को कवर करेंगे, और फिर इसके ऊपर जैसे यू कैन फिक्स द फ्लावर इफ यू वांट टू कवर द क्लिप, इफ यू डोंट वांट टू कवर द क्लिप देन स्ट्रेट आप क्लिप के ऊपर ग्लू गन से भी फ्लावर्स को पेस्ट कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट।
with the hair bands. हेयर बैंड्स के लिए आप अगर हेयर बैंड के लिए नीचे ये रबर बैंड लगाएंगे तो इससे पर्पस ऑफ दिस हेयर बैंड इज रबर बैंडर्स कि इससे थोड़ा सा आपको स्ट्रेच मिल जाएगा। अगर सपोज आपकी लेंथ जो आपकी हेयर बैंड की कम है तो आप आराम इजीली आप इसको स्ट्रेच देके यूज कर सकते हो, क्योंकि ये बैक में ही आना है। अदरवाइज आप इसको स्ट्रेट भी बना सकते हैं यहाँ से, और नीचे से टाई करने वाला बना सकते हैं विद रिबन और विद चेन। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस येलो ब्यूटीफुल हेयर बैंड। हम इसको स्टार्ट करेंगे। और ये जो हमारा थ्रेड है साइड पे, हम इसको कवर करते जाएंगे, इसी के अंदर लेंगे और अपने थ्रेड को सिक्योर करेंगे। बेस्ट इज टू डू द डबल स्टिच। और थोड़ा सा इसको टाइट करते जाएंगे ताकि ये कहीं से भी लूज नहीं रहे। लेट मी कवर इट। हम इसको बनाएंगे, यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। नहीं सॉरी, विल स्टार्ट फ्रॉम हियर ओनली। हम इसको 1 सिंगल चेन देंगे, ठीक है। उसके बाद हम 2 डबल क्रोशियस को स्किप करेंगे। सो टोटल विल मेक 2 डबल क्रोशियस एंड 3 5 6 7 8 9 10 11 11 डबल क्रोशियस का हमने ये राउंड बनाया है, फर्स्ट राउंड जो हम बना रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम एक सिंगल क्रोशिया करेंगे और सॉरी सिंगल डबल क्रोशिया करेंगे 1। देन इसको हम क्लस्टर स्टिच बनाएंगे, 2 डबल क्रोशियस, देन 1 चेन, 2 डबल क्रोशियस, देन विल स्किप यहाँ पे चेन्स स्टिचेस को, 3 स्टिचेस को स्किप करेंगे। और फिर अब इसके बाद हम फिर से सेम को रिपीट करेंगे, क्लस्टर को 4 का विद सिंगल 1 चेन। फिर हम स्किप करेंगे 3 डबल क्रोशियस और फिर हम 4 बनाएंगे। ऐसे करते हुए हम अपना पूरा सेम डिजाइन विल मेक इट। आई शो यू ना ये कितना हुआ। आपके स्टिचेस देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and we need 1 more. उसके बाद आप 3 चेन्स लोगे, इसको टर्न करोगे और उसके बाद आप डबल क्रोशिया यहाँ पे बनाओगे। 2 डबल बनाया,
सेम स्टिच के अंदर 2 डबल क्रोशियास बनाए, सिंगल चेन करोगे आप और फिर से आप डबल क्रोशिया बनाओगे। ठीक है, उसके बाद आप 2 स्टिचेस को, 1 2 3 स्टिचेस को स्किप करोगे और फिर से आप डबल क्रोशिया बनाओगे। 2 2 सिंगल चेन और 2 डबल क्रोशियास। ठीक है, फिर से आप स्किप करोगे 1 2 3 एंड डबल क्रोशियाज आप बनाओगे। 2 डबल क्रोशिया, सिंगल चेन एंड डबल क्रोशियाज। तो ये आपका फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया। नाउ अगेन यू विल मेक 3 चेन्स, 1 2 3 एंड आप टर्न करोगे। फिर जो आपकी ये 2 चेन्स हैं, 2 डबल क्रोशियाज के बीच में जो 1 चेन है, उसके बीच में आप इसको डबल क्रोशियाज को बनाओगे। 2 2 डबल स्टिच बनाने के बाद सिंगल चेन, 2 डबल क्रोशियाज, फिर नेक्स्ट 2 के बीच में आप बनाएंगे सिंगल चेन, फिर डबल क्रोशियाज, फिर आप नेक्स्ट में करेंगे सेम पैटर्न, सिंगल चेन एंड डबल क्रोशियाज, 3 chains, again turn. You will repeat the pattern till you get the desired length. Like अगर आपको लगता है, जैसे मैंने यहाँ पे ऑलमोस्ट 30 राउंड्स बनाए हैं। सी, एक राउंड यहाँ से आप चेक करिए, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 as we are working with the thread, ऑलमोस्ट 38 मैंने रोज करी हैं। अगर आपको लगता है कि आपको इसका से छोटा चाहिए तो आप कम रोज भी बना सकते हैं। फिर से आप इस 2 डबल क्रोशिया के बीच में जो हमारा चेन है ना, तो मैं ये थोड़ा सा आपको दिखाती हूँ कि आप 38 रोज बनाओ, या जब आपकी लेंथ आपको रिक्वायर्ड लगेगा कि इतना आपको सफिशिएंट है, अगर आप बेबी का, छोटे बेबी का बना रहे हो तो आप उसमें आप लेंथ को रिड्यूस कर सकते हो। पैटर्न यही रहेगा और आपने इसको बस रिपीट करते जाना। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि हम थोड़ा सा बना के कि हम इसको दूसरी साइड से ज्वाइन कैसे कर सकते हैं, क्योंकि एक साइड से तो हमने इसको ज्वाइन कर लिया, थोड़ा सा बनाना पड़ेगा, नहीं तो ये थोड़ा सा ट्रिकी हो जाएगा ज्वाइन करना। यहाँ तक अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, तब तक मैं 2 राउंड्स और बना लेती हूँ। In case you have any doubt, please you can ask. You can type in the chat box. यही चीज अगर आप वूल में सपोज करो हेयर बैंड बनाते हैं तो ऑब्वियसली एक तो रो का जो साइजेस होंगे, नंबर ऑफ रोज कम हो जाएंगी। तो डिपेंडिंग अपॉन द थिकनेस ऑफ योर थ्रेड, द नंबर ऑफ रोज विल बी रिड्यूस्ड, कम हो जाएंगी वो। I'll be sending the pattern in the group. If you want, I can repeat also. Simple है ये।
मैं यहीं से आपको बताती हूँ। इनिशियल आपको डबल स्टिच करना है इसमें, जो स्पेस है बीच में, जो हमने ये दो बनाए हैं। फर्स्ट राउंड में हमने दो डबल क्रोशियास बनाए, वन चेन, दो डबल क्रोशियास, देन दो स्टिच, फिर वन चेन, दो स्टिच, फिर दो डबल क्रोशियास, वन स्टिच, वन चेन, दो डबल क्रोशिया। अब जब हम उसे टर्न करते हैं तो हम थ्री चेन्स दे रहे हैं, और फिर इसी के अंदर हम दोबारा से डबल क्रोशिया बनाएंगे। दिस इज अ वेरी सिंपल बट इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। यू कैन मेक इट इन डिफरेंट कलर्स। आप चाहो तो इसमें बीड्स को भी ऐड कर सकते हैं, और आप पेस्ट भी कर सकते हैं ग्लू गन के साथ या फेविकोल के साथ। आप उनके इनको बीच बीच में लगा भी सकते हैं। आई थिंक हम अभी कर पाएंगे इसको अटैच। ऐसे हम 38 रोज बना लेंगे, और उसके बाद हम इसको अटैच करेंगे रिवर्स की साइड से with a single double stitch. Very simple. ठीक है, यहाँ से हम इसको अटैच करेंगे। थोड़ा छोटा बना है इसलिए आई एम फाइंडिंग इट लिटिल डिफिकल्ट, बट आई वांट टू टीच यू कैसे करना है हमें। मतलब हमें हर स्टिच से इसको रिवर्स, देखो इसको बैक साइड से आप करना ट्राई। अगर आपको कहीं कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हम कल दोबारा इसको कर लेंगे, तब तक मैं इसकी लेंथ भी बना लूंगी। आपने इसके बीच में से इसको थ्रेड को पुल कर लेना, और इसको भी साथ में लेना है अपने रबर बैंड को। आपके पास तीन लूप्स आ जाएंगे, एंड देन आपने इसका टू, एंड देन एज सिंगल। ठीक है, इस तरीके से हम करते हुए इसको पूरा फिनिश करेंगे। तो बिल्कुल टाई कर देंगे इसको, एक एक स्टिच में से निकालते हुए, और रिवर्स करके करना है ताकि ये बैक साइड पे आएगा। ये देखो, मैंने क्रोशिया को इसके नीचे से निकाला, फिर स्टिच के नीचे से निकाला, फिर इसको यहाँ पे निकाला, और फिर दो, दो का एक, फिर से इसके बीच में ऐसे। This way we'll attach the rubber band on the other side, और सेम स्टिच करते हुए सेम पैटर्न को फॉलो करते हुए हम इसको करेंगे। इनिशियली थोड़ा सा ट्रिकी रहता है, बट once you'll make few hair bands you'll get used to। और नहीं तो आप दोनों साइड से सिर्फ बनाकर एंड रिबन भी लगा सकते हैं। और ये मैंने अटैच किया। अब मैं इसको रिवर्स फिर से ऐसे, ऐसे उल्टा था ना ये, अब हम इसको सीधा कर देंगे। सो दिस विल कम इन द फ्रंट। ऐसे आप दोनों साइड से अपने रबर हेयर बैंड को ज्वाइन करोगे, और इट विल टेक द शेप लाइक दिस। ये मैंने आपको 5 रोज में ज्वाइन करना सिखाया है। अब सेम पैटर्न को आप इंक्रीज करते जाओगे तो आप बिल्कुल ऐसे ही ये बनेगा। इसमें कोई डाउट है तो आप बोलो, नहीं तो आई विल टेक अ सेकंड हेयर बैंड डिजाइन, पिंक वाला।
जिसमें हम पफ स्टिच बनाएंगे। इसमें कोई डाउट है तो प्लीज आप टाइप करें, नहीं तो मैं नेक्स्ट लेती हूँ, ये वाला। अब हम ये वाला नेक्स्ट हेयर बैंड सीखेंगे, जिसके अंदर विल बी यूजिंग अ पफ स्टिच। एंड आई होप यू ऑल मस्ट बी नोइंग, अगर नहीं तो आई टीच यू दिस पफ स्टिच ऑल्सो। ये जो बीच में है, बाकी रेस्ट इज ऑल सिंपल। विल बी यूजिंग द डबल स्टिच एंड वन पफ स्टिच इन द मिडल, एंड विल इंक्रीज द लेंथ एज पर लाइक जितना भी आपको लगता है कि आपको हेयर बैंड का रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से। सो बेसिकली जैसे हमने उस फर्स्ट अभी हेयर बैंड जो बनाया, उसके अंदर जैसे हमने नॉट्स को यूज डबल स्टिच के साथ एक बेसिक थ्रेड को ज्वाइन किया, उस इसमें भी हम ऐसे ही करेंगे। थ्रेड को यूज थ्रेड से डबल स्टिच करेंगे, और जो टेल वाला साइड है उसको इसके इसमें सिक्योर करते जाएंगे थ्रेड को बीच में ही, नीचे से, ताकि हमें लास्ट में कट नहीं करना पड़े और कुछ नहीं। सो बेसिकली हम इसके अंदर चेन्स बनाएंगे, डबल स्टिच बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। वी नीड फ्यू मोर, 9 10 11 13 14। Total will make double stitches 15। उसके बाद फिर से वही सेम 3 चेन्स, 1 2 3, और हम हर स्टिच में एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे सेपरेट सेपरेट। एक हमारा जो चेन हमने 3 ली उसको भी एज अ डबल क्रोशिया कंसिडर करेंगे, 3 एंड 4। ठीक है, ये दोनों साइड से आपका चलेगा। उसके बाद आप ये देखो, सॉरी, आपने दोनों साइड पे 4 रखना है, बीच में ये 4 चेन्स देनी है। आप फिर से 4 चेन, 1 2 3 4, विल स्किप 4 1 2 3 4। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे पफ स्टिच करेंगे। सर जस्ट केयरफुल गाइस, ये थोड़ा सा डिफरेंट स्टिच है, अगर आता है फ्लावर्स में हम बहुत यूज करते हैं इसको। आप जब यार्न ओवर करेंगे, थ्रेड को पुल करेंगे, तो आप इसको इस लेंथ तक ऊपर लेके जाएंगे, इस लेंथ तक 1। देन फिर से आप करेंगे सेम स्टिच के अंदर यार्न ओवर, और इसको भी पुल करेंगे 2। फिर सेम स्टिच में 3, फिर सेम स्टिच में 4। अभी हमने किसी को कम नहीं किया, 4, और फिर हम 5, मतलब 5 टाइम्स हमने डबल क्रोशिया एक ही स्टिच में डालना है, और किसी का कम नहीं करना है, रिड्यूस नहीं करना है इसको। फिर आपने यार्न ओवर किया एंड स्ट्रेट इसमें से पुल करा, जो हमने क्लस्टर बनाया था स्टिचेस का। उसके बाद 2 रह जाएंगे, और फिर से आप यार्न ओवर करके इन दोनों में से निकालेंगे, और फिर 4 चेन्स, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, और फिर यहाँ से आपने सिर्फ लास्ट के 4 स्टिच में 4 बना दें, 4 डबल सिंगल क्रोशियाज बना दें, डबल क्रोशिया सॉरी बना दें। सो बस इसमें एक ट्रिक था,
दैट वाज अ पफ स्टिच। अगर नहीं क्लियर हुआ देन आई विल एक्सप्लेन अगेन थर्ड राउंड के टाइम पे, और अगर क्लियर है तो हम आगे चलेंगे। Type yes or whatever the query is, please type in the chat box. फिर से हम 3 चेन्स लेंगे, टर्न करेंगे। इस 4 के ऊपर हमने 4 डबल क्रोशियाज ही बनाने हैं एवरी टाइम। इट विल लाइक बी बॉर्डर ऑन बोथ द साइड्स एंड द वर्क विल बी इन द सेंटर ऑफ द स्टिच। जैसे यहाँ 4 रहेगा, यहाँ 4 रहेगा, बीच में चेन रहेगी। अब इस स्टेप में हम चेन्स नहीं बनाएंगे, हम पफ स्टिच के सेंटर में डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 single chain, and again cluster of 4 double crochets in the same stitch. 1 2 3 4। एक में हमने 4 डबल क्रोशिया बनाया, 4 चेन ली, फिर बीच में हमने पफ स्टिच बनाया 5 डबल क्रोशियास का सिंगल कर कर, और फिर एक चेन बना के 4 चेन्स हमने बना दी। इसमें हमने क्या किया, सेकेंड राउंड में 4 डबल क्रोशियास, देन जो पफ स्टिच है उसके सेंटर में हमने 4 डबल क्रोशिया, सिंगल चेन एंड 4 डबल क्रोशियास, बीच में चेन नहीं बनानी। सो द पैटर्न वी हैव टू फॉलो लाइक दिस। ये देखो, अगर इसमें कोई डाउट है तो आप बताना, और उसके बाद यही पैटर्न को हम कंटिन्यू करेंगे टिल विल गेट द लेंथ दैट वी वांट। एंड उसके बाद सेम जैसे मैंने येलो में ज्वाइन किया था, इसको भी दूसरी साइड से वैसे ही ज्वाइन करेंगे। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप बोलो, नहीं तो विल स्टार्ट विद द थर्ड हेयर बैंड। देन इट विल, अगर आप बना देंगे दोनों साइड से ज्वाइन कर देंगे, देन विल टेक अ शेप लाइक दिस। उल्टा कर कर ही ज्वाइन करना है। इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, ये देखो, सिर्फ सेम पैटर्न को फॉलो करना। बीच में ये पफ नॉट रहेगा और साइड पे आपके ये 4 का एक फ्लावर टाइप सा बनेगा, पेटल टाइप। और जॉइनिंग जो है इसकी सेम वैसे ही रहेगी जैसे हमने पहले वाले में ज्वाइन किया था। सो वी हैव फिनिश्ड विद द 2 हेयर bands. Now we'll start with another one. That is your ring wala, this one. इसमें हम फर्स्ट स्लिप नॉट करेंगे, ठीक है। सिंगल चेन बनाएंगे हम, 1 2 4 5 6 12 चेन्स बनाएंगे, और फर्स्ट जो स्टिच है उसमें हम स्लिप नॉट कर देंगे, ठीक है। मेक सर्कल, इससे हमारा इस साइज का सर्कल बन जाएगा। इसके अंदर हम 23 चेन्स करेंगे, विच विल बी कंसिडर एज अ डबल स्टिच, और इसको साथ साथ लेते सिक्योर करेंगे धागे को, और इसमें 24 हम डबल क्रोशियास बनाएंगे चेन के अंदर जो हमने रिंग बनाया है।
ये मेरे 10 डबल स्टिचेस बन गए हैं, मुझे 12 और बनाने हैं, 14 सॉरी, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23 and 24। और यहाँ पे हम फर्स्ट स्टिच में स्लिप नॉट करके सर्कल कंप्लीट करेंगे। सो वी विल फॉर्म वन सर्कल ऐसे। नाउ विल मेक 10 चेन्स। Ten chains and okay, and we'll do the slip stitch। दो तीन chains छोड़ दो आप और स्लिप स्टिच करके एक हमारा सर्कल बन जाएगा। ठीक है, ट्वेल्व 14 चेन्स हम बनाएंगे और दो हम चेन्स छोड़ देंगे एंड देन विल फॉर्म अ सर्कल ऑफ 12 चेन्स। 12 चेन्स का हम सर्कल बना रहे हैं, दो चेन्स हम छोड़ रहे हैं बीच में, 1 and 2। ठीक है, और यहाँ पे हमने कर दिया स्लिप नॉट। अब ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे हम फिर से 24 डबल क्रोशियास बनाएंगे इसके अंदर। 1 2 3 चेन्स, इट विल बी कंसिडर एज 1 डबल क्रोशिया। 2 6 आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। आप प्रैक्टिस करना आज, अगर आपको बनाने में कहीं कोई भी डाउट आता है तो आप ग्रुप में डाल देना, तो मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगी। बिल्कुल सिंपल है ये, इसमें बस थोड़ा सा ट्रिक है, बाकी इट्स वेरी सिंपल। 12 chains, 24 double crochets, then 14 chain, we'll skip 2 and we'll make one circle। ऐसे बनेगा वो सर्कल। ठीक है, अगेन मैंने 14 चेन्स बनाए हैं और फिर से एक और सर्कल बनाएंगे। मैं आपको 4 सर्कल्स बना के ना आपको ये बता देती हूँ कि इसको, ये वाला डिजाइन इस रिंग्स से फिर कैसे बनेगा, ये रिंग्स के साथ ये डिजाइन कैसे बनेगा। सो मैं 4 वो बना देती हूँ रिंग्स और फिर मैं आपको इसकी ओवरलैपिंग बताती हूँ। कोई साथ साथ प्रैक्टिस कर रहा है तो प्लीज टाइप यस।
फिर से एक रिंग बना लेते हैं हम। 3। अगर आपको लगता है कि आप और ये डबल क्रोशिया इस रिंग में बनाना चाहते हैं तो आप देख लेना कि ज्यादा टाइट नहीं हो जाए वो, ताकि ये इजीली इनमें से आप रिंग्स को निकाल सकें। चलो, वी हैव फिनिश विद द 3 रिंग्स। ये पैटर्न हमें ऐसे ही कंप्लीट करना बस। उसके बाद इट्स वेरी सिंपल। जब आपका ये पूरा चेन बन जाएगा, व्हाट यू हैव टू डू इज, ये वाला जो सबसे टॉप वाला रिंग होगा उसको इसके गैप में से आपको निकालना। ठीक है, पूरा का पूरा ये इसके नीचे ऐसे आ जाएगा। ठीक है? और फिर इस रिंग को उसके नीचे वाले रिंग में से निकालना। पूरा का पूरा फिनिश करना, सो दैट ये जो ओवरलैपिंग है आपके, ये ऐसे रहे। ये ऐसे आपका, आप रिंग्स के अंदर से रिंग्स निकालते जाएंगे। इस रिंग में से आपने इस रिंग को, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ आप रिंग्स को निकालते जाएंगे, तो इट यू विल फॉर्म अ पैटर्न लाइक दिस। आपका रिंग का ऐसा पैटर्न आ जाएगा। यहाँ तक कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। मतलब हम लोग ये थर्ड डिजाइन मेरा कंप्लीट हो रहा है यहाँ पे। सो हमने एक रिंग वाला आज बनाया, एक येलो बनाया और एक ये पिंक बनाया। I'll tell you with the basic stitches of your tulip. इसमें पॉपकॉर्न स्टिच यूज होगा। ये वाला। This is very delicate and very beautiful. It has come out very beautiful. आपको टोटल 59 चेन्स बनानी है। But I will not make 59 chains. I'll just tell you the basic design. इसमें आप slip knot and then 59 chains. ठीक है, उसके बाद सिंगल डबल क्रोशिया हम करेंगे हर स्टिच में। हर चेन में हम डबल स्टिच करेंगे। 3 चेन्स को स्किप करके एक बेस तैयार करेंगे, ये वाइट वाला।
इसमें मेन जो ट्रिक है वो है ट्यूलिप्स बनाने की। बाकी तो ये मस्ट बी अवेयर, ये वही कॉमन स्टिचेस हैं जो हम करते हैं। ये सेम पैटर्न आप बैग्स के लिए भी यूज कर सकते हो, बहुत सुंदर लगता है ये। इवन प्लेन पोस्टर्स बना के, और जो आप आउटर पे ट्यूलिप्स बना सकते हो, तो वो भी बहुत सुंदर लगता है। अब यहाँ पे हम ग्रीन थ्रेड ज्वाइन करेंगे इसके सेकेंड राउंड के लिए। जब आप ये बनाओगे ना फर्स्ट राउंड 59 चेन्स का, आप इस वाइट थ्रेड को यहीं कट कर दोगे, एक चेन करके आप इसको कट करोगे। और फिर से वाइट जो आपने सेकंड थ्रेड यूज करना है लीव्स के लिए या बेस के लिए, वो आप यहाँ फर्स्ट जो हमने 3 चेन्स बनाए थे वहीं से आप स्टार्ट करेंगे। यहाँ से यू विल जॉइन द थ्रेड, और यहाँ पे ना आप एक सिंगल डबल क्रोशिया बनाएंगे 3 चेन्स का। ठीक है, उसके बाद आप 2 चेन स्किप करेंगे और तीसरे में आप 2 डबल क्रोशियास बनाएंगे। 1, एक बनाया, उसमें हमने चेन 2 चेन्स बनाई, फिर एक और डबल क्रोशिया बनाया। ठीक है, और फिर उसके बाद आपने 2 स्टिच को स्किप किया, तीसरे में फिर से आपने डबल क्रोशिया करना, 2 चेन्स करनी है और डबल क्रोशिया करना, 2 चेन्स को स्किप करना है, 2 स्टिचेस को स्किप करना है। ऐसे करते हुए आप सेकेंड राउंड अपना कंप्लीट करोगे। आई होप यहाँ तक क्लियर है आपको। लास्ट में दोनों साइड एक ना सिंगल सिंगल आप डबल क्रोशिया कर देंगे, उससे जब हम साइड्स के लिए बॉर्डर बनाएंगे तो वो थोड़ा इजी हो जाएगा बनाना। विल कट द थ्रेड फॉर द सेकेंड राउंड। अब हम बनाएंगे पॉपकॉर्न स्टिच फॉर द ट्यूलिप्स। ये आपका बन गया फर्स्ट राउंड। सेकेंड राउंड
यहाँ से फिर हम डबल क्रोशिया कर रहे हैं, 3 चेन्स करेंगे और अपना नेक्स्ट ट्यूलिप हम बनाएंगे जो हमारे ये 2 डबल क्रोशियास के बीच में एक चेन है उसके अंदर पॉपकॉर्न स्टिच 1, इसकी लेंथ को फिर से इंक्रीज करेंगे 2, ये 5 हमने स्टिचेस बनाए। उसके बाद इसमें से निकालेंगे और ओह आई एम सॉरी, इसमें हमने 5 डबल क्रोशियास बनाए, ठीक है, और लास्ट के लूप्स हमने ऐसे रखे 1 2 3 4 5, ठीक है। अब हम इन सबको निकालेंगे और चेन स्टिच करेंगे। इसमें हमें और यहाँ से हम चेन करेंगे अगेन इन सेकेंड राउंड ऑल्सो विल डू रिपीट द सेम। ऐसे करते हुए हम अपना ट्यूलिप्स का राउंड कंप्लीट करेंगे। There's one more style of doing it, मैं सेकेंड में आपको बताती हूँ डिफरेंस। 5 डबल क्रोशियास हम बनाते जा रहे हैं जैसे एक में, ठीक है। वन टू थ्री फोर फाइव, इसको यहाँ लूप में छोड़ के ना स्टार्टिंग वाली चेन में से इसको पुल कर लेंगे तो ये बनेगा आपका पॉपकॉर्न टाइप, सिंपल। 5 सिंगल स्टिचेस करके आप अपना जो ये वाला रिंग है इसमें से निकालेंगे। उसके बाद 2 चेन्स और फिर से हम यहाँ पे पफ स्टिच बनाएंगे 5 बना के। सो ऐसे हम अपना थर्ड राउंड कंप्लीट करेंगे और फोर्थ राउंड फिर से हम ये वाइट वाले का इसके ऊपर से करेंगे तो ये आपका हेयर बैंड कंप्लीट हो जाएगा। और फाइनल आपका जो ये यहाँ से आपने छोड़ दिया और फर्स्ट स्टिच में से इस स्टिच को पुल करा, इस लूप को पुल किया ऐसे और फिर इसके पीछे से चेन, ये आपके बनेंगे ट्यूलिप्स। इट विल टेक अ शेप लाइक दिस और ऐसे आप अपना पूरा का पूरा राउंड कंप्लीट करते हुए ये हेयर बैंड बनाएंगे। उसके बाद जो सेम हमने नीचे राउंड बनाया था उसको हम ऊपर बनाएंगे। साइड से आप इसको फिर रिड्यूस करते हुए जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आपने फर्स्ट राउंड में 10 बनाए,
सेकेंड राउंड में आप 9 करेंगे, थर्ड राउंड में आप 6, फिर 3 और फिर 1 रिड्यूस करते जाएंगे। और उसके बाद जब आपके पास एक रह जाएगा देन यू कैन मेक अ चेन टू टाई। अदरवाइज अगेन दैट एक लूप बना दे और उसमें रिबन फिक्स कर सकते हैं। दिस इज योर आज का फोर्थ हेयर बैंड। As we are short of time, so we'll be covering the flowers tomorrow and I'll teach you this hairband कल। अगर कल थोड़ा क्लास लंबा हो जाएगा तो प्लीज bear with it because ये वाला एक रह गया है हमारा और ये कल एक हमारा है हेयर टाई। उसमें जितने भी हम फ्लावर्स बनाएंगे उन सेम फ्लावर्स को ही हम यूज कर लेंगे उसके अंदर। और I'll teach you flowers and cups also tomorrow. So कल we'll extend the class by half an hour more अगर हमारे ये सब कुछ कवर नहीं हुआ तो that's all for today। अगर आपको कोई भी query है you can ask, otherwise we'll leave the class here and tomorrow we'll see each other at by 11:30।